students, welcome to G3 online classes. Students, now we will continue planning process. Planning process, in the previous class we started meaning of planning, merits, demerits. Now we will study planning process. Planning process means when we look the planning as a part of management, then it is called management process. But when we studied it as a different from the management, then it is called a process. Process means we have to take a number of steps while doing the planning, right? That is the main difference in management process, and simply it's a planning process, right? Planning is indeed to order a solve problem or take the advantage of some profitable situation, right? In this context, if a manager makes analysis of the strength and weakness, the strong point and weak point of the enterprises, this analysis keeps in mind the internal and external environment of the enterprises also, right? In the previous chapter we studied the environment. For example, if the government is thinking to establish a factory in the development of some rural area, then an intelligent manager would certainly like to take advantage of this situation. Okay? And planning starts from very minute point. ठीक है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि येस वी विल स्टार्ट आवर फैक्ट्री इन द रूरल एरिया, देन द मैनेजर स्टार्ट प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यू कैन मार्क इम्पॉर्टेंट ऑन योर बुक. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव फाइनली हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वी हैव टू डिटरमाइन. क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव वी हैव टू कम्युनिकेट दिस ऑब्जेक्टिव टू अवर एम्प्लॉई सो दैट दे विल कोऑपरेट, they will do their work efficiently in order to achieve that organizational objective. ठीक है, first of all we have to prepare organizational objective, then departmental objective, and the third is individual objective, right? Let us take an example to understand this point, setting objective. For example, a company want to raise its sale of ₹2000 crore. अगर एक कंपनी अपनी सेल को 2000 करोड़ तक इंक्रीज़ करना चाहती है, तो इसके लिए उसको ये 2000 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उनकी सेल को इंक्रीज़ करना है अप टू 2000 करोड़, राइट? उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब अगर एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना रही है, तो उसके लिए उसको अलग अलग, जैसे एक प्रोडक्ट के लिए 1000 करोड़ सेल रखनी है, सेकंड के लिए 500 करोड़ एंड थर्ड के लिए 300 करोड़ की सेल उसके लिए टारगेट है. तो इसके बाद जो है वो उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड है, राइट? इन द कंटेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी डिटरमाइंड. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट अलग हो जाएगा. अचीव उस डायरेक्शन एक ही है, लेकिन एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी उनकी, राइट? द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्शन करनी है, एंड इन द एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी टोल्ड अबाउट इट एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम. अभी जैसे हमने पढ़ा था, आफ्टर डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नाउ वी विल कम्युनिकेट दिस ऑब्जेक्टिव टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड टू द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ सो दैट दे विल cooperate with the organization and tries to achieve this objective, right student? That is the first process. Next, developing premises. Developing premises का मतलब आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है बिल्डिंग, भवन, but here the meaning is different. The word is same but the meaning is different. Developing premises means assumptions. Premises means assumptions, the factors which affect our planning, which is closely related with our planning, right? Assumptions we can also set मान्यताएं. हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ मान्यताओं को लेकर अपने साथ चलते हैं. ठीक है, कि हम मान लीजिए हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे ही. ठीक है, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा. फाइन, तो ये होती है हमारी डेवलपिंग प्रेमिसेस. इसके लिए हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमिसेस होते हैं. इंटरनल प्रेमिसेस विच इज़ रिलेटेड विद द फर्म इटसेल्फ, कैपिटल
लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम अपनी एजम्पशंस सेट करते हैं, मान लेते हैं कुछ चीज़ें। एक्सटर्नल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बिजनेस कॉम्पिटिशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल द अदर थिंग्स। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं, जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अ कंपनी वांट टू एक्सपेंड इट बिजनेस। ठीक है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। कंपनी के पास ऑल्टरनेट है कि अपनी वो फैक्ट्री को रूरल एरिया में भी इस्टेब्लिश कर सकती है। इसके लिए वो इंटरनल प्रेमिसेस को भी, जैसे कि कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी नहीं, इन सब चीज़ों को एज्यूम करके चलती है कि हमें मिल जाएगा वहाँ पे। एक्सटर्नल फैक्टर है लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट की। द मैनेजर शेल हैव टू टेक फॉरकास्ट ऑफ ऑल दिस एजम्पशन। हम मान कर चलते हैं कि हमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे इनके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, दीज आर द डेवलपिंग प्रेमिसेस। हम प्लानिंग करने के लिए प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं, मान कर चलते हैं। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स कि अगर हम इनके अलावा कोई और मेथड यूज़ करें, जनरली देर इज़ नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेट। हर काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट्स होते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ जाने के लिए हम कौन कौन से वे को यूज़ कर सकते हैं। राइट, अल्टरनेट क्या क्या है हमारे पास। हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, हम ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं, हम बसेस को यूज़ सकते हैं। वो बात अलग है कि इस टाइम पर हमारे पास ट्रेन और बसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट इन द जनरल एनवायरनमेंट वी मे हैव दीज अल्टरनेटिव्स। राइट, जनरली हर काम को करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। हम उस काम को करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेट्स क्या हैं। ठीक है, अगर हम टीवी प्रोड्यूस करते हैं तो टीवी के डिफरेंट साइड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर्टिकुलर साइज़ के अलावा हम दूसरे साइज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं। अगर हम टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ रेफ्रिजरेटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द, पहचानना कि डिफरेंट अल्टरनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेट कोर्सेज। इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेट कोर्सेज, इवैल्यूएशन मीन्स उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को चेक करना है हमें। ऑल दोज अल्टरनेट कोर्सेज विच आर अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया। हम किसी भी चीज़ के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि इस चीज़ के लिए मिनिमम चीज़ें तो ये होनी चाहिए। जैसे वोटिंग के लिए हमारी एज 18 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है वोटिंग के लिए। इससे ज़्यादा वाले लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन इससे नीचे वाले नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें अल्टरनेट्स को इवैल्यूएट करना है। जो हमारे मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया में जो चीज़ें फिक्स नहीं होती, हमें उन सबको पहले बाहर कर देना है। और जो शॉर्ट लिस्टेड चीज़ें रह जाती हैं, फिर उनको हमें उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को चेक करना है कि आर दे सूटिंग आवर प्रोडक्ट और नॉट। क्या वो हमारे प्रोडक्ट को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर करते हैं तो उनका बेटर रिजल्ट किसका होगा। ठीक है, जिसमें मेरिट्स ज़्यादा है, डीमेरिट्स कम है, हम उसको एक सेलेक्ट, उसके लिए हम देखेंगे। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट, एनालिसिस हो गया। आफ्टर एनालिसिस, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट, हमने उनका इवैल्यूएशन कर लिया, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख लिया। नाउ इट इज़ टाइम टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। Sometime the analysis yields more than one alternate course with similar merit. कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मेरिट्स, कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा आपकी क्लास में कई बार 2 स्टूडेंट फर्स्ट होते हैं, 2 स्टूडेंट सेकंड होते हैं, सेम मार्क्स होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे भी हमारे लिए ऐसे ही है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास ऑल्टरनेट ऐसे हैं जिसकी मेरिट ज़्यादा हैं, तो हम एक को यूज़ कर लेंगे और दूसरे को स्टैंड बाय पे रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे, उसको रिजर्व कर लेंगे अपने पास। इन केस अगर फर्स्ट हमारा प्लानिंग फेल हो जाता है तो हम सेकंड वन को यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान, 6 पॉइंट है इसका, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान। नाउ इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट वन विच वी हैव सेलेक्टेड। जो हमने सेलेक्ट किया है उसको यूज़ करना है। ठीक है, चीफ प्लान और सब्सिडरी प्लान्स, दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी डिसाइडेड। हमें सीक्वेंस भी डिसाइड करना है एक्टिविटीज़ का, राइट, कि हमें कौन कौन सा काम किस किस तरीके से करना है और कौन उस वर्क को परफॉर्म करने वाला है। देन फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सुपरवाइज द थिंग्स इफ़ दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। आपने देखा होगा आपके स्कूल में
जब हमारा क्लासेस चल रही होती हैं तो हमें हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे मैनेजर सर सुपरविज़न करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि इफ़ द क्लासेस आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। इसी तरीके से काम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पॉलिसीज़ बना ली, बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। नाउ इट इज़ टाइम टू डू द फॉलोअप। हमें ये देखना है कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज़ द फॉलोअप एक्शन। राइट स्टूडेंट्स, प्लानिंग का जो टॉपिक है ये यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्लान्स ये हमारे बुक में गिवन है, सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग यूज़ प्लान्स। दिस टॉपिक इज़ नाउ डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस for this year. Types of plans, single use plans, standing use plans are now deleted from our syllabus. हमारे सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है। आप अपनी बुक में इसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा देंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर क्रॉस का साइन, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसके ऊपर क्रॉस का साइन टाइप्स ऑफ प्लान में लगा हुआ है, आप इसको क्रॉस कर देंगे अपनी बुक में। ये हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा प्लानिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इनफ फॉर द डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।